everyone, how are you? I hope everyone is fine at home. So class, in the last class we have done few functions and what is the use, how to create dictionaries. Now today we are going to start with the demo of dictionary. So let's start. So class, here basically this is a question where we need to write a program to convert a number entered by users into its corresponding number in words. For example, if user is entering 876, then the output has to be 876. That has to be number names. ठीक है. So class, what are the steps we need to perform? Let's first see. So class, सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करनी पड़ेगी? डिक्शनरी, जिसके अंदर हमें की वैल्यू पेयर लेना पड़ेगा. So हम कीज ले लेंगे 1 और उसकी वैल्यू दे देंगे ONE, कॉमा 2 और उसकी वैल्यू दे देंगे TWO, तो सो ऑन. ठीक है. फिर हमें यूजर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा नंबर, लेकिन क्लास हमें यूजर से नंबर लेना पड़ेगा स्ट्रिंग में. क्यों? इसका क्वेश्चन और इसकी डिस्कशन विल डू इन द नेक्स्ट स्लाइड. आफ्टर दैट यूजर ने नंबर भी डाल दिया, डिक्शनरी में मेरे पास वैल्यूज भी है. अब मुझे उस नंबर को जो यूजर ने डाला है मुझे डिक्शनरी की कीज के साथ मैच करना होगा. ठीक है ना. सो अगर यूजर ने डाला 4 5 6, सो 4 को मैं मैच करूंगी की से. 4 अगर मिल गई तो मुझे उसकी कौन सी वैल्यू चाहिए? उसकी FOUR. ठीक है. तो इस तरह से हम काम करेंगे और वैल्यू जैसे मिलती जाएगी उसको हम डिस्प्ले कराते जाएंगे. सो लेट्स सी हाउ मेनी वेरिएबल्स वी आर सपोज टू क्रिएट. So first of all we need to create a dictionary which name I need to give is like number names, and whatever the value you are going to accept from the user in the form of string, the name I am giving num, and after that I'm going to create whose value would be I. ठीक है. So let's see first of all then why we are accepting a number in string. So class, string data type store anything that we all know, that anything from the keyboard. It could be numbers, it could be alphabet, it could be symbols, it could be special characters. Special symbol मतलब @, special characters means hash, dot, dollars, ठीक है, slash, colons. So internally like list, it is also maintaining indexing. Let's see example. Imagine we have created two variables. First, the name of the variable is num, whose value is 456, and second variable is address, whose value is a-block space CP, because space is also a character class because we are entering from the keyboard. So class, how the data is going to be stored internally when we are making a data in a form of a string. So let's see first for the address. So class, address में ये देखिए कितने blocks बने as per the data entered by the user or by us. A-B-block space CP. So class, like a list, it also maintain the index. So first value is having 0 index, second value 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So it means string ही वो एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें यूजर जो वैल्यू डाल रहा है उसकी हम सेपरेशन कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन कम्स, इस क्वेश्चन में सेपरेशन क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज क्लास, यूजर से हम नंबर लेंगे, नंबर तो थाउजेंड्स में भी हो सकता है, लैक्स में भी हो सकता है ना, हंड्रेड्स में भी हो सकता है. हंड्रेड्स की बात करूँ तो हंड्रेड्स का मतलब कितने डिजिट होंगी? 3 1s 10s एंड 100. यस और नो? अब मुझे उस नंबर की ब्रेकिंग करनी है. अगर मैं इंट लूँगी तो सॉरी, आई कांट डू द ब्रेकिंग कर सकते लेकिन वो लॉजिक बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो मैंने क्या किया, सिंपलेस्ट लॉजिक यूज़ करा. मैंने जो भी यूज़र से वैल्यू लूँगी वो स्ट्रिंग में डालूंगी. अब यूज़र अगर 3 डिजिट वैल्यू डाल रहा है या 4 डिजिट वैल्यू डाल रहा है, इंटरनली अपने आप ब्लॉकिंग बन जाएगी. अब ब्लॉकिंग बनने से मेरे लिए तो ईजी हो गई ना, मैं ईजी 1 by 1 नंबर को फेच कर सकती हूँ और उसकी नंबर वैल्यू डिक्शनरी से ले सकती हूँ. लेट्स सी फॉर द नम में हमने वैल्यू दी थी यहाँ पर 4 5 6, तो इंटरनली ऐसे ब्रेकेज हो जाएगी. So 4 is having a 0 index, 5 is having 1 index, and 6 is having 2 index. Let's see something diagrammatically. So first class, accept the value from the user in string data type and stored in num variable by using input function. For example, हमने यूजर से वैल्यू ली या यूजर ने वैल्यू डाली num के अंदर 432. उसके बाद we are going to create a dictionary. क्लास ये मैंने आधी बनाई है because we need to go to till 0. So 4 के बाद 5 6 7 8 9, after that 0 has to become. सो क्लास, यहाँ नंबर नेम्स, हमने नंबर नेम के नाम से डिक्शनरी बनाई है जिसमें 1 2 3 4 ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना, इंटीजर वैल्यूज, ये मेरी कीज हैं. सो बेसिकली कीज मैंने इंटीजर में लिए हैं और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ONE, TWO, THREE, FOUR 4, ये मैंने लिया है स्ट्रिंग के अंदर.
ठीक है. So keys are in integer data type and the values of that particular keys are in string data type. So we need to create a loop with the name I. क्यों? क्लास सबसे पहले हम I लेंगे. I एक एक करके वैल्यूज पे नेविगेट करेगा जो यूजर ने एंटर करी है, और उसके बेस पे हम वैल्यू को लेंगे और उसकी हम कॉरस्पॉन्डिंग कीज को फेच करेंगे. अगर यूजर ने 432 डाला है तो मैं पहले 4 की की उठाऊंगी ये, और उसके बाद उसकी क्या उठाऊंगी, वैल्यू. ठीक है. लेकिन क्लास यहाँ पर थोड़ा सा एक चेंज है. जैसे कि आपको पता है यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो नम में आएगी, और नम का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है. लेकिन हम वैल्यू अगर 4 उठाते हैं तो 4 का डेटा टाइप भी क्या हुआ, स्ट्रिंग. तो 1 2 3 4 यहाँ पर इनका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. तो दिस इज द पॉइंट वेयर वी नीड टू टाइप कास्ट द वैल्यू. सो हम जब वैल्यू उठाएंगे एक्स में डालेंगे तो टाइप कास्ट करके डालेंगे, और एक्स के बेस पे उसकी वैल्यू उठा लेंगे, की वैल्यू उठा लेंगे. ठीक है. ये काम 1 by 1 होगा. दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू क्रिएट अ लूप. ठीक है. फ्रॉम विच नेम, फिर फ्रॉम विच डिक्शनरी, हुज नेम इज नंबर नेम, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्प्ले देम 1 by 1. सो क्लास लेट्स सी, दिस इज आवर वैल्यू. ठीक है. दिस इज अ वेरिएबल हुज नेम इज नम. ये हमारा स्ट्रिंग में इसलिए ब्लॉक्स बन जाएंगे. सो क्लास आई हैव क्रिएटेड अ ड्राई रन ओवर हियर. सो सबसे पहले आई जो पॉइंट आउट करेगा वो 4 पे करेगा, बिकॉज आई किस पे वर्क कर रहा है, नम के ऊपर. ठीक है. तो नम के अंदर जो पहली वैल्यू है वो है 4. सो यहाँ पर जब लूप चलेगा पहली बार तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4. अब 4 जो मेरा है वो नम में है. नम का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग. अब मुझे ये 4 को किस में से ढूंढना है, इस डिक्शनरी में से. लेकिन इसमें जो 1 2 3 4 क्लास है ना, इसका क्लास डेटा टाइप इंटीजर है. तो स्ट्रिंग और इंटीजर कैसे फाइंड आउट करेगा ना, तो इसलिए दोनों का डेटा टाइप मैचिंग करना पड़ेगा. हम डिक्शनरी का तो डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, जो 4 जिसको कौन पॉइंट आउट कर रहा है, आई, इसका ही डेटा टाइप चेंज कर देंगे लाइक दिस. सो हमने आई का डेटा टाइप चेंज कर दिया इंटीजर में और किस में स्टोर करा दिया, एक्स में. तो इन शॉर्ट आई की वैल्यू क्या थी, 4 डेटा टाइप कन्वर्ट हुआ इंटीजर में और एक्स में स्टोर हो गया, तो एक्स में हो गया 4. इट मीन्स अब वो एक्स मेरा वेरिएबल है जिसके बेस पे मैं उसकी वैल्यू उठा सकती हूँ. तो एक्स मेरी अब वो की है डिक्शनरी में से जिसके बेस पे मैं उसकी क्या उठा सकती हूँ, वैल्यू. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे की मिल गई अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेट डेटा टाइप. अब मैं उसकी वैल्यू उठा लूंगी. सो एज यू पीपल आर अवेयर, डिक्शनरी में से कोई वैल्यू उठानी हो तो वी नीड टू यूज द बिग ब्रैकेट्स. ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था. सो नंबर नेम इज द नेम ऑफ माई, एज यू कैन सी द डिक्शनरी. ब्रैकेट में एक्स मतलब हो गया 4. तो मुझे कौन सी की वैल्यू उठा रही है, 4 की वैल्यू क्या है, FOUR. वो क्लास किस में जाके स्टोर हो जाएगी, y में. तो y का मतलब ये हो गया FOUR, और वही हम डिस्प्ले करवा देंगे. अब हम आगे बढ़े तो लूप अब i जो है किसको पॉइंट आउट कर रहा है, क्लास 3 को. सो सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा i की वैल्यू क्लास क्या हो जाएगी, 3. सेम टाइप कास्टिंग करानी पड़ेगी. ठीक है ना. टाइप कास्टिंग में अब मेरा जो i है वो 3 हो गया, 3 किस में आ गया, x में. इट मीन्स x के अंदर अब वो मेरी की आ गई जो मुझे नंबर नेम में से ढूंढनी है, जो कि ये रही. अब मैं क्या कराऊंगी, इसकी वैल्यू उठा लूंगी. सो नंबर नेम x, अब मेरा लेटेस्ट क्या है, 3. तो 3 की जो वैल्यू है THREE वो किस में स्टोर हो जाएगी, y में. तो y में इन शॉर्ट ये वैल्यू आ गई और हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे. आफ्टर दैट लूप चलेगा अब हमारा नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा i की वैल्यू कितनी है, क्लास 2. तो हम सेम टाइप कास्ट कराएंगे. ये हम टाइप कास्ट क्यों करवा रहे हैं, बिकॉज नम जो डेटा टाइप है उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग. ठीक है. और हमारे डिक्शनरीज ये जो कीज है ना, 1 2 3 न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये मेरी इंटीजर हैं. तो स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में से कैसे मैच करेगी, तो हम मैचिंग करवा रहे हैं सो दैट मैं इजीली कीज को फाइंड आउट कर सकूं. सो इसलिए हमने आई जो आपका 2 है उसको टाइप कास्ट किया एंड में और किस में स्टोर करवा लिया, एक्स में. सो बेसिकली वी आर रीयूजिंग आई वेरिएबल, एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल. लूप का यही बेनिफिट होता है, एक काम बार बार करते हैं और एक ही वेरिएबल बार बार रीयूज हो जाता है. ठीक है. अब x में आ गया 2, तो 2 ये रहा न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बेस में मैं उसकी वैल्यू उठा लूंगी. सो यहाँ पर जो हमने लिखा नंबर नेम ब्रेक ब्रैकेट x मतलब 2 की क्या वैल्यू है, TWO. तो y के अंदर TWY हो जाएगा, हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे. ठीक है. आफ्टर दैट इट्स डन. नाउ क्लास लेट्स सी द कोड. For you people, I have already created a code. Let's come to that code. So class focus here. हमने सबसे पहले यूजर से बोला enter any number. देखो मैंने कोई इंटीजर टाइप कास्ट नहीं किया है, सीधा यूजर जो भी वैल्यू डालेगा वो नम में आ जाएगी. इट मीन्स नम की जो वैल्यू हम यूजर से ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, स्ट्रिंग में.
ठीक है, वी आर एक्सेप्टिंग द वैल्यू इन स्ट्रिंग। ठीक है, यूजर ने जो भी वैल्यू दी वो कौन सी डेटा टाइप में आ गई, नम के अंदर। फिर हमने नंबर नेम्स नाम से एक डिक्शनरी बनाई जिसमें 0 की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 द नंबर विच आर कमिंग इन ब्लैक, दीज आर माई कीज। कॉलोन के बाद ये जो ग्रीन कलर में आ रहे हैं, दीज आर माई वैल्यूज। तो 0 की वैल्यू 0 है, 1 की वैल्यू ONE, 2 TWO एंड सो ऑन। अब मैं क्या लॉजिक लगा रही हूँ, मैं एक लूप लगाऊंगी। जो यूजर ने नम के अंदर वैल्यू डाली है, मैं एक एक करके इनकी कीज में से ढूंढूंगी और उसकी वैल्यूज पे पहुंच जाऊंगी। ठीक है, सो मैंने लूप लगाया फॉर आई इन नम। ठीक है, तो नम के अंदर क्या वैल्यू है, इमेजिन करिए यूजर ने यहाँ पर वैल्यू डाली है, इमेजिन 4 5 6। ठीक है ना, सो पहली बार जब लूप चलेगा, नम में से पहली आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लास 4। ठीक है, सो 4 को मैंने टाइपकास्ट किया इंट में, एक्स में आके स्टोर करवा लिया। तो एक्स के अंदर कितना हो गया, 4। अब हम नंबर नेम्स डिक्शनरी में एक्स की वैल्यू के बेस पे की उठा लेंगे। तो नंबर नेम्स में एक्स की अभी लेटेस्ट कितनी है, 4। तो 4 मतलब ये वाला 4, एक्स के अंदर ये वाला 4 स्टोर हो गया। ठीक है, तो y के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज नंबर नेम के साथ आप की बिग ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, तो FOUR किस में आ जाएगा, y में, डिस्प्ले करवा देंगे 4। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपका लूप चला, नेक्स्ट टाइम जब लूप चला, अब क्या वैल्यू i के अंदर आएगी, 5। अब कौन सी वैल्यू i के अंदर आएगी, क्लास 5। जब i के अंदर वैल्यू आई 5, हमने उसको टाइपकास्ट किया। टाइपकास्ट करना क्यों जरूरी है, बिकॉज 5 मुझे इन ये वाली डिजिट्स में से ढूंढनी है, और ये डिजिट्स का डेटा टाइप इंटीजर है, तो मैंने टाइपकास्ट किया। सो टाइपकास्ट करके मैंने 5 को किस में स्टोर करवा लिया, एक्स में। अब नंबर नेम की कीज के बेस में मैं उसकी वैल्यू उठा लूंगी। तो नंबर नेम्स 5 का मतलब अब FIVE हो गया, वो किस में आ जाएगा, y में, और वो डिस्प्ले करवा दूंगी। नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, अब मेरी i के अंदर क्या स्टोर होगा, 6। ठीक है, 6 यहाँ पर आया, 6 को मैंने टाइपकास्ट किया x के अंदर, और डिक्शनरी की अब मेरी कौन सी हो गई, ये वाली 6। ठीक है, और उसके बेस में ये वैल्यू उठा के मैं किस में डाल दूंगी, y में, और डिस्प्ले करवा दूंगी। ठीक है, लेट्स रन दिस प्रोग्राम। इसमें क्लास वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सो आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग। तो पहले मैं वैल्यू 4 5 6 से डालूंगी, उसके बाद वी कैन चेंज इट एज पर आवर विश। सो एंटर एनी नंबर, मैंने डाला 4 5 6, तो आ गया 4 5 6। आप रीरन करना चाहते हैं, इसमें डिजिट अनलिमिटेड है, यू कैन एंटर एनी नंबर्स, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक आई एम एंटरिंग लाइक दिस नंबर, सो इट विल शो यू लाइक दिस। आप चाहते हैं ये 4 5 6 अभी सब अलग अलग लाइन में आ रहा है, इट शुड कम इन अ सिंगल लाइन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बस हल्का सा चेंज करना है क्लास। ये कुछ प्री डिफाइंड एक आप कह सकते हैं कंसेप्ट है। आपको लिखना है एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज। ठीक है, फाइल में जाके ये जो चेंजेस किया है प्लीज इसको सेव कर दीजिएगा। रन करेंगे अगेन, सो आई एम एंटरिंग द सेम वैल्यू। सो हेयर आई एम एंटरिंग 4 5 6, नाउ इट विल कम इन अ सिंगल लाइन। आप देख रहे हैं, ये पहले अलग अलग लाइन में आ रही थी, ये सिंगल लाइन में आ रही है। Again, I am going to run this function. I am entering the value which I have entered earlier. That was 6 7 5 4 7. Now I press enter. All will come in a single line. Is that okay, class? ठीक है. So and is doing what? By default क्या होता है ना, print function जब भी print करता है ना, next जो next value दिखाता है वो next line में दिखाता है। तो एंड के कंसेप्ट से हम प्रिंट को ये बोल रहे हैं कि भाई अब नेक्स्ट लाइन में मत जाओ, जो भी दिखाओगे वो कंटिन्यू करना सेम लाइन में। सो दैट्स वाई जस्ट वी आर ब्रेकिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रिंट फंक्शन विच ऑलवेज प्रिंट एंड गोज टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, दैट्स इट फॉर द टुडे क्लास। सो यू नीड टू डू दिस प्रोग्राम इन योर नोटबुक एंड ट्राई टू डू द प्रैक्टिकल। थैंक यू।